یہ کس کا عرص ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ یہ کس کا عرص ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ تقریباً 150 کلومیٹر کے رینج کے قریب میری ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہے جہاں سے بارہ بنکی کا فاصلہ ہے، لیکن میری کم نصیبی میری آنکھوں کے بجھے ہوئے چراغ کو اس بارگاہ کی لو نصیب نہ ہو سکی۔ لیکن آج اس ذات مقدس کو ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر دیکھنے والوں کی نگاہوں میں آسانی سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ جب میں نے اس خانقاہ شریف کا سفر کیا تو تصویر کے ذریعے حضور صاحب عرس کی پاکیزہ محبت بھری تصویر دیکھی، ایک اسکرین پر دیکھی، میری نگاہیں ٹھہر گئیں۔ آپ بھی ٹھہر جائیں ایک لمحے کے لیے۔ چہرہ دیکھنے کے بعد لگتا تھا کہ چاند بھی اس چہرے سے چمکنے کی بھیک مانگتا ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، ایسا محسوس ہوا۔ واہ واہ، مجھے ایک بات یاد آئی، بہت غور سے سنیں آپ۔ باتیں بیچ میں کوئی مسکرانے کیا جائے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ کوئی بہت قیقوں کو فروغ دینے والی محفل نہیں ہے۔ یہ تو بہت آسان کر کے آپ سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ زیادہ آپ کا سابقہ ایسے علماء اور مشائخ سے کم پڑتا ہے کہ آپ ان کے لب و لہجے کو آسانی سے آپ سماعت کر لیں، عمل کریں یا عزت کریں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے بہت آسان کر کے لوگ آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ خواجہ فخر بڑی چھوٹی عمر کے ایک بزرگ تھے، چھوٹی عمر کے بڑے بزرگ تھے، مشکل سے 10-12 سال ان کی عمر تھی، لیکن ان کی ایک عادت تھی، وہ جس چیز کو دیکھتے بس دیکھتے رہتے، جس چیز کو دیکھتے دیکھتے رہتے، اور اگر کوئی حسین چہرہ نگاہوں کے سامنے آتا تو اس چہرے پر وہ نگاہیں گاڑ دیتے، اتکی باندھ کے دیکھتے، بہت دیر تک دیکھتے، بہت دور تک دیکھتے جاتے، اتنا دیکھتے کہ ان پر نگاہوں کے عیاش ہونے کا الزام لگ گیا۔ خواجہ فخر ہے کہ 10-12 سال کے بچے، تمہاری یہ عادت، تم ہر حسین چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہو، بہت غور سے دیکھتے ہو۔ ان کی ماں، ان کے باپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ سہروردیہ سلسلے کے بڑے عظیم بزرگ شیخ نجیب الدین شاہ سہروردی کی بارگاہ میں ماں اور باپ نے فیصلہ کیا کہ اپنے اس بیٹے کو بھیج دیا جائے تاکہ اس کے کردار کے بازو کو اللہ مضبوط فرما دے۔ ان کے والد صاحب اپنے بیٹے فخر کو لے کے جا رہے تھے کہ بزرگوں کی صحبت پا جائے گا تو سمجھ جائے گا، بہکنے سے بچ جائے گا۔ عجیب و غریب عادت پڑ گئی ہے، جس حسین چیز کو دیکھتا رہتا۔ جنگل سے گزر رہے تھے، اچانک ایک شیر آ گیا۔ جب شیر قریب آیا دہاڑے مار کے تو باپ نے کہا فخر بھاگو۔ خواجہ فخر ٹھہر گئے، اسی انداز میں گھور کر کے شیر کو دیکھنے لگے۔ اللہ اللہ، شیر کو دیکھنے لگے، شیر بھی اپنی جگہ ٹھہر گیا، خواجہ فخر کو دیکھنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور باپ دونوں کو دیکھ رہا۔ اللہ اللہ، میں بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا تھا اور میرا بیٹا اپنی نگاہوں کو ڈھال بنائے ہوئے ہے اور شیر کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے۔ بہت دیر کے بعد شیر آگے بڑھا، اس نے خواجہ فخر کے قدموں کو چوما اور واپس چلا گیا۔ باپ نے چیخ مار کے پوچھا، بیٹے فخر یہ کیا ہوا؟ خواجہ فخر کہتے ہیں، میرے باپ دیکھا نہیں آپ نے کہ شیر کتنا خوبصورت تھا؟ باپ نے کہا تعجب ہے کہ لوگ شیر کو خوبصورتی کی وجہ سے نہیں پہچانتے، وہ پھاڑ کے کھا جانے والا جانور ہے، اس کی درندگی کی وجہ سے لوگ اسے پہچانتے ہیں، اس کا پریشر ہے، اس کا روب ہے، اس کا جلال ہے، اور تم کیا دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ خواجہ فخر کہتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں میرے باپ کہ شیر کتنا خوبصورت تھا؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جب شیر اتنا خوبصورت ہے
تو جس نے شیر کو پیدا کیا ہوگا وہ کتنا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. نعرے تکبیر. اپنے بزرگوں کی آواز کو بلند کریں. نعرے تکبیر. اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. فیضان محبان اہل مصطفیٰ. زندہ باد. علماء اہل سنت. زندہ باد. فیضان حضور سراج الاولیاء. زندہ باد. فیضان اعلی حضرت. زندہ باد. حضور صاحب سجادہ. زندہ باد. آپ محسوس کریں کہ جب اللہ کے نبی کے غلام ایسے ہیں تو مدینے والے کیسے ہوں گے. جب مولائے کائنات کے کردار کو فالو کرنے والے چہرے ایسے ہیں جہاں چاند اور سورج بھیک مانگتے ہیں روشنی کی کرنوں کی. الحمدللہ جس نگاہوں نے اس ذات مقدس کے کتابی چہرے کا مطالعہ کیا ہے ان نگاہوں کو دیکھ کر کے دوسری نگاہیں جن سے روشنی ختم ہو چکی ہے انشاءاللہ اپنی نگاہوں میں وہ تازگی محسوس کریں گے انشاءاللہ. کہیں آنے والے وقتوں میں لوگ آپ کی نگاہوں کا بوسہ دیں گے. یہی وہ نگاہیں ہیں جن نگاہوں نے حضور شبیر ملت کے چہرے کو دیکھا. سبحان اللہ. ان کی جوتیوں کو اپنی پلکوں پہ سجایا. سبحان اللہ. ان کے چہرے مقدس کو اپنی نگاہوں کے رحم پہ رکھ کے مطالعہ کیا ہے. سبحان اللہ. تلاوت کی ہے. دعا کریں پروردگار عالم اس نسبت کو اور مضبوط فرمائے. آمین. اور مضبوط فرمائے. آمین. حضور صاحب سجادہ کی موجودگی ہے. اب میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے آپ کو اس شہر لے کے چلتا ہوں جہاں سرکار مخدوم دیوان شاہ کی چوکھٹ ہے. سرکار ٹوپی شاہ والے بابا سرکار دورا شاہ کی ذات مقدسہ جو ابرار کی پوسٹ پر ہے وہ موجود ہے. قطب کوکن سرکار مخدوم ماہمی آرام کر رہے ہیں. وزیر مالیت سرکار مخدوم بہاؤالدین شاہ آرام کر رہے ہیں. ممبئی شہر کی زمین بزرگوں کی زمین ہے. مختار کی زمین ہے. افراد کی زمین ہے. ابدال کی زمین ہے. اوداد کی زمین ہے. متقین کی زمین ہے. شہداء کرام کی زمین ہے. اولیاء کرام کی زمین ہے. صالحین کی زمین ہے. جتنے مشائخ کرام کی زیارت کرنے کا شوق آپ کے دل میں مچلتا ہے وہ سارے کے سارے ممبئی شہر میں فیوز و برکات تقسیم کرنے کے لیے گاہے بگاہے نظر آتے ہیں. اس شہر مقدس کی خوشبو ایک ادیب کی حیثیت سے, ایک دانشور کی حیثیت سے, ایک سنی اسکالر کی حیثیت سے, ایک بافیض وجود کی حیثیت سے علامہ سراج احمد صاحب قبلہ چشتی کے پیکر میں ایک لہجہ موجود ہے جو اگر تقریر نماز کے موضوع پہ کر دے تو مسجد کا شکم نمازیوں کی غذا سے بن جائے. وہ تقریر اگر ماں کی فضیلت پر کر دے, تقریر کر دے, خطاب کر دے, واز کر دے تو لوگوں کی خشک ہونٹوں کی پپڑیاں ماں کے قدم کو چوم کر کے گلاب کی پتیوں میں تبدیل ہو جائے. اگر یہ لہجہ مشائخ کرام کی عظمت پر خطاب کر دے تو لوگ اپنے ان بزرگوں کی جوتیوں میں کو دسترخوان پہ رکھ کر کے ان میں ڈال ڈال کے اسے تناور کرتے ہیں. یہ ذات مقدس اگر رمضان کے روزے پر تقریر کر دے تو لوگ جوش میں آ کے شعبان کے مہینے سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں. ایسی سچی ہوئی شخصیت ادبی اعتبار سے آپ کی وزن محبت میں ہے. اگر ایک آدمی نعرے سے استقبال کر لے گا تو میں اس حسین ادبی کتاب کو آپ کے حوالے کروں گا. اور ذرا محبت کے ساتھ میں فیضان بڑھ رہا ہے سراج الاولیاء کا. الحمدللہ زندہ باد. بہت دیر سے نعرے لگ رہے ہیں, ممبر نور سے لگ رہے ہیں, آپ کی طرف سے لگ رہے ہیں, درمیان سے. ابھی تک ایک نعرہ پیچھے سے نہیں لگا, وہاں سے جو بہت بالکل ایک دم آخری بارڈر پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہے کہ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک آدمی وہاں سے بھی کھڑا ہو جائے, ذرا سا آپ کی بیداری کا مجھے یقین تو ہو جائے, ہے کہ نہیں. کم سے کم ایک آدمی کھڑا ہو جائے. سرکار غوث اعظم کے نام کے علم کو بلند کرنے والا حضور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نعرہ لگاتے ہیں آپ خاموشی مت بیٹھے, ہے کہ نہیں. اگر یہ ایسے لوگ دو چار لوگ اور پیدا ہو جاتے ہیں تو ہندوستان اور پہلے آزاد ہو گیا ہوتا. لیکن پیچھے اتنے ایسے خاموش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ پیدا ہوئے ہوتے تو آج تک آزاد نہ ہو پاتا. یہ بھی پریشانی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے محبت بھرے ماحول میں جب حضور صاحب سجادہ ہوں تو نعرہ بھی اسی انداز کا ہو. نعرے تکبیر.
آسمان کی ادبی گفتگو سماعت کریں جس سے آپ کی سوچ کی زلفیں سنور جائیں گی۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدتوں سے بھری رات ماہتابی ہو، سرور عشق میں دن کی فضا گلابی ہو، کھلا ہو ساقی کوثر کا میکدہ یا رب، ملے جو جام مجھے صدقہ صحابی ہو۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساماں میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساماں میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم انکا میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم انکا میں۔ حضرات، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بن کر خود اٹھا لے ہاتھ سے مینا اسی کا ہے۔ اور حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی بلند فکر شاعر نے یہ کلام لکھا تھا، ایسے ہی مرد درویش، ایسے ہی ولی کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ جنہیں اپنا سمجھتی ہیں اسی کی جان لیتی ہیں، سلیمیں اپنے منصوروں کو خود پہچان لیتی ہیں۔ حضرات، بس زیادہ ٹائم نہیں ہے اور وقت کی قلت کی بنیاد پر مضامین کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ مرشد نے اس قدر مجھے دیوانہ کر دیا، خوش شمع بن گئے، مجھے پروانہ کر دیا۔ اللہ کی شراب ذرا سی چکھی تھی میں، شبیر شہنے سامنے میں خارا کر دیا۔ میرا دعویٰ نہیں تنہا نبھائی دوستی ہم نے، محبت کو سنبھالا ہے کبھی ہم نے کبھی تم نے۔ محبت ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے، محبت دونوں طرف ہو تو مزہ دیتی ہے۔ اس لیے اہل محبت سے گزارش کروں گا، جس مجلس محبت کا میر میکدہ ایک ولی کامل ہو، ایک درویش کامل ہو، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو، جسے شبیر ملت کہا جاتا ہے، وہ جس مجلس محبت کا میر میکدہ ایک درویش کامل ہو، وہاں کے رند کبھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے ہیں۔ اس لیے آؤ کچھ بیان کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں، حضور آقا نعمت کی بارگاہ میں، آقا کریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ بے مثالی کا ہے مثال وہ حسن، خوبی یار کا جواب کہاں۔ تقریباً 2 سال پہلے یہی محب گرامی جناب شبیری صاحب، جو یہاں کے نعت خواں ہیں، جو درباری شاعر ہے، یہی لے کر حضرت شبیر ملت کے دربار میں لے کر مجھے پہنچے تھے۔ جب میں اس خان وادے میں پہنچا تھا، ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کو دیکھا تھا تو صحابہ کا دور عظیم یاد آ رہا تھا۔ ایسے بارگاہ کرم میں جب میں حاضر ہوا تو دل سے یہی آواز نکل رہی تھی کہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ مت جاؤ، ہمارے دانت عجائب
के चाहने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ये वो अल्लाह वाले हैं जिस जमीन पर उनके कदम पर जाते हैं वो जमीन रश के जन्नत बन जाया करती है। ऐ अहमदाबाद शरीफ बुजुर्गों का शहर है, अल्लाह वालों का शहर है, वलियों का मस्कन है। आओ वहीं पर एक चमकते हुए चिराग को देखना है तो सरकार शबीर मिल्लत को देख लेते हैं। उनके मजहर आईना, उनके शहजादे यहाँ पे मौजूद है। हमने उस जात को देखा था, खुदा की कसम उनकी खाकसारी को देखकर, उनकी इंकिसारी को देखकर वही शेर याद आ रहा था। एक ही सब पे खड़े हो गए महमूदो आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। शबीर मिल्लत ने अपने मुरीदों को नवाजा था और पाबंदी लगा दी थी, मेरी जिंदगी में इस रात को फाश न करना, मेरी जिंदगी के बाद मेरे औलाद की खिदमत कर लिया करना। आज देखा ये जा रहा है कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। शबीर मिल्लत एक रहनो काम के समंदर का नाम है, उसी के धारे को देखना है तो हमारे मिल्लत के कामिल का अंदाज को देख लो। मुसन्निफे साहिबे तसानीफे कसीरा हजरत शबीर मिल्लत है। इनका ताल्लुक उस मरदूब खैर सरजमीन से है जिसे शहर लखनऊ कहते हैं, जिसे बाराबंकी कहते हैं। ये वो शहर लखनऊ है जिसे नवनाथ की सरजमीन कहा जाता था, जिसे बुजुर्गों का शहर कहा जाता था, जिसे मीनारों की नगरी कहा जाता था। मगर बर्बाद गुलिस्तान की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था। अब हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। आओ जरा हम निस्बती लोग हैं और निस्बती ही जन्नती हुआ करते हैं। हम निस्बत को बताना चाहते हैं, इसलिए ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, ये ऐसे पीर की बारगाह में हम खिलाज अकीदत पेश कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी पीरी मुरीदी का झंडा नहीं उठाया था, मुरीद करने के लिए ऐलान नहीं करवाया था। आज अगर कहीं से खिलाफत मिल जाती है तो लंबे लंबे झंडे बुलंद किए जाते हैं, पीरी मुरीदी के बैनर छपाए जाते हैं। मगर शबीर मिल्लत का ये तुर्रे इम्तियाज रहा कि इन्होंने पीरी मुरीदी को अपना मशवरा नहीं बनाया था, इन्होंने अपनी रोजी नहीं बनाई थी, इन्होंने अपने पेट के लिए पीरी मुरीदी को नहीं किया था। अगर पीरी मुरीदी किया था तो नबी के दीन के फरोग के लिए किया था, नबी के दीन मदीन के फरोग के लिए किया था। इसलिए ऐसे बारगाह अज़मत में आप हाजिर हुए हो, इसलिए हमें कह लेने दिया जाए मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुशम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब सरासी चखी थी मैं, शबीर शहने सामने मैं खाना कर दिया। ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत होनी जाती है। ये शर्मा खुद भड़कता है, नहीं जाता। इस दौर में अगर लिसाने उम्मत कहा जाए तो एक नाम है जिसे आसिफ रजा सैफी कहा जाता है। ये मैं चापलूसी में नहीं बोल रहा हूँ, आज पूरे भारत में जो बुलबुल चहक रहा है ये फैजान किसका है? ये फैजान हजरत मुफ्ती आज़म हिंद का है, उनके दर तालक का है। ये वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है कि बरेली का बनिया जब मुफ्ती आज़म हिंद को देखा था तो मजहर गौसे आज़म को देखा था तो कलमा पढ़ करके कहा था जब बरेली के अब्दुल मुस्तफा इतने हसीन है तो मदीने के प्यारे मुस्तफा कितने हसीन होंगे। ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, आप लेकर से गुजारिश करूंगा थोड़ा माइक का वॉल्यूम और बढ़ा दे, इसलिए कि अब मजमा वक्त शराब पर आया है, अब रात जवान हो चुकी है और माइक भी जवान के हवाले कर दिया गया है। अब मोहब्बत की बारी आ रही है, अब अकीदत की बारी आ रही है। मैं आईना हो दिखाऊंगा ताक चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए और कागज का ये लिबास कदम से उतार दे। बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। ऐ लोगों, शबीर मिल्लत के मानने वाले करोड़ों अरबों में खेलने वाले हैं। हमने सुना है एक शख्स को शबीर मिल्लत ने 1100 रुपया दे दिया था, आज अरबों में खेल रहा है, उनकी औलाद से मोहब्बत कर रहा है। और जरा अल्लाह वालों को देखो, ये खुद नहीं खाते हैं, औरों को खिला दिया करते हैं, औरों को बना दिया करते हैं। इसलिए ऐ लोगों, जो काम करना नामोद के लिए ना करना, जो काम करना दिखाने के लिए ना करना, जो काम करना, जो खिदमत करना, उनके शहजादे की अगर खिदमत करना तो ये सोच करके ना करना हम बदला दे रहे हैं, ये सोच करके करना कि हम अपने पीर की खिदमत अदा कर रहे हैं। ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, और सबसे बड़ी खिदमत तुम्हारे निगाहों के सामने ये फैजान शब्बीरिया है, जो दीन का किला है, जो दीन
की इमारत है, मुझे कहने दिया जाए मैं कहाँ रुकता हूँ। अर्शो फर्श की आवाज से मुझको जाना है बाहर, ऊंचा हदे परवाज से। आज मकतब की शक्ल में है। अहमदाबाद के जियाने मुसलमानों, तुम बुजुर्गों के शहर में रहते हो, अल्लाह वालों की नगरी में रहते हो, इस जामिया को इस कदर अजीम बना दो कि यहीं पर काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद होती रहे और तुम्हारे पीर के फैजान हमेशा के लिए जारी रहे। सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग है, गरीब नवाज का फैजान लेकर के उठे हैं, इसलिए हमें कहने न दिया जाए विलायत के समंदर का नाम गरीब नवाज है, उसके धारे का नाम शब्बीर मियां है। और मोहब्बत करने वाले हो और अकीदत करने वाले हो या चापलूसियों का जुमला बोलने वाला नहीं हो। आप तो मुरीदों और पीरों को देखा जाता है, एक इस्लामी स्कॉलर पैदा हुआ है, एक बोगस इस्लामी स्कॉलर पैदा हुआ है जिसे ब्लैक डॉग जाकिर नाइक कहा जाता है। ये वो जालिम है जो जहन्नम का चीफ गेस्ट है। ये अपने लिटरेचर के जरिए से न जाने कैसी कैसी तकरीरें किया करता है, न जाने कैसे कैसे बकवास किया करता है। आज पीरों पे तनकीद कर रहा है, मुरीदों पे तनकीद कर रहा है। आखिर करने की वजह क्या हो गई है? कुछ पीर ऐसे निकल चुके हैं जो डालडा छाप निकले हैं, जो घी के मुकाबले में डालडा आ गया है और उन्हीं डालडा छाप पीरों की वजह से तमाम अजमतों को पामाल किया जा रहा है। मगर ऐसा पीर मिल्लत के चाहने वालों, तुम्हारा पीर ऐसा पीर नहीं था, ऐसे ना जाने कितने पीरों का पीराने पीर था, न जाने कितने पीरों का अमीर का। आओ अब जरा मोहब्बत के माहौल में आ रहे हो, अब जरा अकीदत के माहौल में आ रहे हो। हम तुम्हें पहले शहर लखनऊ का भी सफर करवाएंगे और शहर बाराबंकी का भी सफर करवाएंगे। ये वो शहर बाराबंकी है जो इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, तारीख के चैप्टर में लिखा गया है। हम बताना ये चाहते हैं, शहर लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले तुम्हारे मुर्शिदे कामिल है, वहीं से ताल्लुक रखने वाले उनके साहिबजाद काम है। इनसे मोहब्बत करना, इनसे प्यार करना और इस दीन के इदारे को एक दीन का किला बना देना जहाँ के दीवार से हमेशा आवाज आएगी मैं कहाँ रुकता हूँ। अर्शो फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत, ऊंचा हदे परवाज से। ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, हम निस्बती लोग हैं और निस्बती ही जन्नती हुआ करता है। अगर निस्बत को समझना है तो चलो मार्केट में चलते हैं, एक कपड़े की दुकान पे चलते हैं, 2.5 मीटर कपड़े आप ले लो, 1 मीटर कपड़ा मुझे दे दो, 2.5 मीटर कपड़े का कुर्ता आप बना लो, 1 मीटर कपड़े का कुरान का जुतान मैं बना लो, कुरान का गिलाफ मैं बना लो, कुरान का कवर मैं बना लो। है कुर्ता पहनने वाला, जब तू कुर्ते को पहनेगा कुर्ते को चूमेगा नहीं, मगर है कुरान पढ़ने वाला, जब तू कुरान को पढ़ेगा कुरान से पहले कवर को चूमेगा, कुरान से पहले जुतान को चूमेगा, कुरान से पहले गिलाफ को चूमेगा। अब यही कोई सवाल कर सकता है, यही कोई सवाल कर सकता है। अल्लामा सिद्दीकी साहब हमारे बाएं तरफ बैठे हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है दिल जो होता है वो बाएं तरफ हुआ करता है। हम बताना ये चाहते हैं, अगर हमसे कोई सवाल करना चाहेगा और पूछेगा कि एक कपड़ा वो भी है, एक कपड़ा वो भी है, मिल वही है, फैक्ट्री वही है, टेलर वही है, एक कपड़े को चूमा जा रहा है, एक कपड़े को छोड़ा जा रहा है, तो यहीं पर हजरत शब्बीर मिल्लत के शहजादे जवाब देंगे मौलाना तुम्हें इल्म नहीं है, कपड़ा तो वही है मगर निस्बत का फर्क है। एक कपड़ा जो छोड़ा जा रहा है उसे पसीने से निस्बत है और एक कपड़ा जिसे चूमा जा रहा है उसे कुरान से निस्बत है। और निस्बती लोग निस्बती ही जन्नती हुआ करते हैं, निस्बत ही मकाम पर लाया करता है। फरजाने हंसे जितने वो दीवाना नहीं हो, पीकर जो बहे जाए वो मस्ताना नहीं हो। है फरते अलम ने भी मुझे सख्त की तूफान जो घर के झलक जाए वो पैमाना नहीं हो। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हो। मैं शाहिद अनवारे हकीकी हूँ सराबा जो शम्मा पे चल जाए वो परवाना नहीं हो। आज मसला के आला हजरत को सुनकर कुछ लोगों को मिर्गी की बीमारी आ जाती है, कुछ लोगों को अकड़ी की बीमारी आ जाती है, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है,
शोलापुर की सरजमीन पर मेरी तकरीर के बाद यही ब्लैक टाइप जहन्नम का मेहमान खुसूसी जिसे जाकिर नाइक कहा जाता है, इसी का चाहने वाला आकर के मुझसे डायरेक्ट सवाल किया था, कहा मौलाना तुम लोग आला हजरत को लाकर के नबी के मुकाबले में खड़ा कर देते हो। हमने कहा हमने क्या खड़ा किया है? कहा तुम ही लोग तो कहते हो डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हमने कहा इसमें तुझे तकलीफ की क्या उनकी जरूरत पेश आ गई? कहा तकलीफ इस बात पर है लाखों सलाम नबी पे पढ़ा जाता है और लाखों सलाम आला हजरत पे पढ़ा जाता है, लाखों सलाम पैगंबर आदम पर है और लाखों सलाम तुम्हारे आला हजरत पे है। ये भला कैसे हो सकता है? वही लाखों सलाम पैगंबर की जात पर है, वही लाखों सलाम नबी की जात पर है, वही लाखों सलाम बरेली के आला हजरत के जात पर है। ये भला कैसे हो सकता है? क्या तुमने लाकर के बराबर खड़ा कर दिया? सवाल इतना खतरनाक था कि अगर आम आदमी होता तो थोड़ी देर उसके हाथ पैर फूल जाते, अगर मौलवी की शक्ल का इंसान ना होता तो पैरों से जमीन खिसकती नजर आती कि बताइए सवाल कितना खतरनाक है। मगर उसे क्या खबर है जिसके ऊपर हजरत शोरुल औलिया का फैजान जारी हो, उसे दुनिया की ताकत भला क्या मिटा सकती है? हम बताना ये चाहेंगे। हमने कहा पहले तू ये बता दे अपनों में से है या बेगानों में से है, अपनों में से है या गद्दारों में से है? क्या मैं खानदानी सुन्नी हूँ मगर मेरे साथी मुझे टॉर्चर करते हैं, स्कूल के स्टूडेंट है और मुझसे टॉर्चर करके सवाल करते हैं कि तेरे आला हजरत ने तो नबी पे लाखों सलाम पढ़ा है मगर तुम लोग आला हजरत पे लाखों सलाम क्यों पढ़ते हो? हमने कहा अगर तू सुन्नी है तो सुन ले, हम अगर लाखों सलाम आला हजरत पे पढ़ते हैं तो एहसान का बदला देते हैं। क्या वो कौन सा एहसान? हमने कहा अगर तू सुन्नी है तो सुन ले, आला हजरत ने तुझ पर भी सलाम पढ़ा है, तेरे बाप पर भी पढ़ा है, तेरे दादा पर भी पढ़ा है। कहा वो कैसे? हमने कहा वो ऐसे एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ऐ सुन्नी जुन जन्नती मुसलमानों, हजरत शब्बीर मिल्लत का मिशन था, मतलब के आला हजरत को लेकर के चलते थे, आला हजरत का परचम लेकर के चलते थे। आला हजरत ने इस सरजमीन पर जो काम किया है वो अपने लिए नहीं किया है, गुलामान मुस्तफा के लिए किया है, नबी के चाहने वालों के लिए किया है। ऐ नबी के चाहने वालों, ये दरवेश कामिल है, ये अल्लाह के वली है, जिस जगह बैठ जाते हैं वो जमीन रश के जन्नत बन जाया करती है। हम अहमदाबाद के इस हजरात के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जहां सरकार कुतुब आलम का फैजान लेकर एक दरवेश कामिल जिसे हजरत शब्बीर मिल्लत कहा जाता है, उनका मजार आज मरजाए खलाइक बना हुआ है और साल भर के अंदर यहाँ पर जो मैंने तरक्की देखी है ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनकलाब ही इनकलाब नजर आएगा, उजाला ही उजाला नजर आएगा, इनकलाब के रास्ते हमवार हो जाएंगे और इंशाअल्लाह यहाँ की सरजमीन पर ऐसे ऐसे उलमा पैदा होंगे जो ऐवाने बातिल में ज़लज़ला पैदा कर देंगे। ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, हजरत शब्बीर मिल्लत का ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरजमीन जिसे लखनऊ कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी मानी जाती है, ये शहर लखनऊ है, ये अल्लाह वालों का शहर है, ये बुजुर्गाने दीन का शहर है, ये नबी के दीवानों का शहर है। वहीं से 25 किलोमीटर की दूरी पर या 22 किलोमीटर की दूरी पर ये शहर बाराबंकी है जो ऐतिहासिक शहर है। यहीं पर इमाम खुमैनी जो ईरान में पैदा हुआ है वहीं का रहने वाला है। आप सोचोगे उसके नाम लेने की जरूरत क्या थी? तो मैं ये कहूंगा मुल्क शाम का अगर नाम ले लिया जाए तो कभी कभी यजीद का नाम भी ले लिया जाता है। मैं बताना ये चाहूंगा यही सरजमीन है जहाँ पे अल्लाह वालों का मजार है, जहाँ बुजुर्गाने दीन का मजार है, वहीं पर अंसारी बरादरी के कबीले में इनका ताल्लुक है और वहीं पर ये जन्म लिए है और वहीं से उठे हैं और सरकार कश्मीरी की बारगाह से फैजान करम को लेकर अहमदाबाद की सरजमीन को आज चमकाते नजर आ रहे हैं, आज महकाते नजर आ रहे हैं। वही शहर लखनऊ है और उस सरजमीन को मैं जरा बताना देना चाहूंगा। नगमात की सरजमीन जिसे लखनऊ कहा जाता है, वहीं पर एक अल्लाह के वली है जिन्हें हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। ये जानते हो मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने इनका मजार पाक है और ये ऐसे अल्लाह वाले हैं, ऐसे बाफैज करामत वाले बुजुर्ग हैं जिनका जमाना तकरीबन 500 साल पुराना जमाना है। इनके मजार की करामत ये है कि उनके मजार पर सुलगने वाली अगरबत्ती के खाक
को अगर उठाकर बीमार आंखों में लगा दिया जाए तो उसकी बरकतों से अल्लाह उसके आंखों में रोशनी पैदा कर देता है, उसकी बरकतों से परवरदिगार उसके आंखों में तवानाई पैदा कर देता है, उसकी आंखों में कुव्वत पैदा कर देता है। वही सरकार हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह है। इसलिए हमें कह लेने दिया जाए, पूरे भारत में अगर हुकूमत देखना चाहते हो तो पूरे भारत में चिश्तियों की हुकूमत है। इसलिए मैं वहाबियों से कहना चाहूंगा, इन मस्जिद के मुल्लाओं से कहना चाहूंगा, इन अहले खबीसों से कहना चाहूंगा जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, अब एक गोबर का नाम हलवा रख देने से गोबर हलवा नहीं होता है। इन लोगों को चैलेंज करके मैं बताना चाहूंगा, तुम लोग कहते हो, तुम लोगों का दावा है कि हम हिंदुस्तान में है, तो याद कर लो अगर गरीब नवाज को नहीं मानते हो तो भारत को छोड़ दो। इसलिए कि भारत मेरे ख्वाजा का है, भारत हमारे सरकार का है, भारत सरकार ख्वाजा का है। इसलिए कहने में दिया जाए, पूरे भारत पर अगर हुकूमत देखना चाहते हो तो चिश्तियों की हुकूमत है, चिश्ती शेरों की हुकूमत है। उसी जवार रहमत का फैजान लेकर सरकार शब्बीर मिल्लत है जो आज यहाँ पे हाजिर है, इनका फैजान जारी है। अल्लाह वाले कभी मुर्दा नहीं हुआ करते हैं, छुरी की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। इसलिए मुझे कह लेने दिया जाए, ये वो दरवेशे कामिल है, ये वो पीरे तरीकत है जिन्होंने पीरी मुरीदी का झंडा नहीं गाड़ा था, पीरी मुरीदी की दुकान नहीं खोला था, पीरी मुरीदी के लिए लिटरेचर नहीं बनाए थे, पैम्फलेट नहीं शाये किया था, बल्कि एक टूटी हुई झोपड़ी में बैठकर खुदा का जिक्र कर रहे थे, खुदा की इबादत कर रहे थे, खुदा का नाम ले रहे थे। तो आज अल्लाह ने उनको इस कदर चमका दिया कि अहमदाबाद के गली कूचों में शब्बीर मिल्लत का फैजान जारी है, आज शब्बीर मिल्लत का नाम जारी है। इसलिए लोगों मुझे कह लेने दिया जाए, और आज के तो कुछ ऐसे पीर घूम रहे हैं, अरे कपड़ा रंग लेने से बुजुर्गी का रंग नहीं चढ़ सकता है, लंबे लंबे सुर्ख रखने से बुजुर्गी का रंग नहीं चढ़ सकता है, 30-30 अंगूठी पहन लेने से बुजुर्गी का रंग नहीं चढ़ सकता है। अरे लोगों, आज के पीरों का तो यही हाल है कि यार मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे तो 4 मुरीदों का मुझे पीर बना दे। ये आज के लोगों का है, मगर शब्बीर मिल्लत का जमाना था, इस पर कभी भरोसा न किया, भरोसा किया है तो गरीब नवाज पे भरोसा किया है, भरोसा किया है तो गौसे आजम पर किया है। हजरत वक्त की किल्लत की बुनियाद पर समेटने की कोशिश कर रहा था, मगर अभी 1:45 बजे हैं, 12 बजकर के गुजर गया, मगर सुन्नियों के चेहरों पे कभी 12 नहीं बजता है। और हमारी घड़ी भी कितने कमाल वाली होती है, जब सुई 6 पे जाती है तो ख्वाजा की छट्टी याद आती है, सुई 11 पे जाए तो गौसे आजम का मुर्गा याद आ जाए, 12 पे जाए तो 12वीं के सरकार याद आ जाए, 1 पे जाए तो खुदाए वाहिद की याद ताजा कर दे। ये तो अकीदतमंदों की घड़ी है, मगर मकरूहों की भी घड़ी है, जिनके चेहरे पे शामी कबाब नजर आता है, उनके घड़ी में 12 के बाद 1 नहीं बजता है। वही घड़ी लास्ट में 24 बजाया करती है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के भरा, हम लोग पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। शब्बीर मिल्लत के बारगाह में हाजिरी की सादत हासिल करने वाले लोगों, यहाँ पर मुफ्तियाने किराम है, अगर एक भी जुमला मैंने गलत बोला तो फौरन शरीयत की कैंची से सलाम कतर दी जाएगी। मगर मैं बताना ये चाहूंगा कि अगर किसी पर मजहब का जनाजा तुमने पा लिया और माज़अल्लाह उसे जायज़ समझ करके पढ़ लिया तो तुम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे, शब्बीर मिल्लत का फैजान तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे नबी का फैलान है, मेरे नबी का फरमान है, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, दोस्ती भी खुदा के लिए करो और दुश्मनी भी खुदा के लिए करो। आम लोग कहते हैं मौलाना किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, मगर यहाँ पर एक किला बनाया गया है जहाँ पर ऐवान हक हो, जहाँ पर हक का अलमबरदारी का दर्स दिया जाएगा, एहकाक़े हक और इब्ताले बातिल का दर्स दिया जाएगा। शब्बीर मिल्लत का फैजान लेकर आप उठोगे तो कामयाबी से हमकनार कर दिए जाओगे। मैं आपको उनके शहर मोहब्बत की तरफ ले चलता हूँ जिसे शहर लखनऊ कहते हैं। वहीं पर हजरत
मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार पाक है। सरकार मखदूम मीना चिश्ती एक वली कामिल के साथ साथ बहुत बड़े राइटर भी हैं, बहुत बड़े मुदर्रिस भी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े आलिम रब्बानी हैं। जैसे सरकार शब्बीर मिल्लत को आम आदमी ना समझा जाए, जिन्हें साहिबे तसानीफे कसीरा कहा जाए। अभी मैंने इनकी समाने उम्री को जब पढ़ा है तो तकरीबन 2 से भी किताबों के मुसन्निफ है। आज अगर किसी ने 4 वर्ष का किताब लिख लिया तो अपने आप को इमाम गजाली समझ रहा है, मगर शब्बीर मिल्लत ने बैठकर 200 किताबें निपटा ली, मगर अभी कभी अपना नाम नहीं किया, अपने नाम का झंडा नहीं बुलंद किया। ये तो उनके मुरीदों का हुस्न अकीदा है कि उनके वसाले गुसाल के बाद उनके नाम को उजागर कर रहे हैं। लोगों इसीलिए कहीं कहने नहीं दिया जाए, इंसान की सीरत सूरत नहीं चमका करती है, इंसान की सीरत चमका करती है। लेकिन शब्बीर मिल्लत के चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे एक आईना निगाहों के सामने हो, जिससे नूर के धारे निकल रहे हो, जिससे नूर की किरणें निकल रही हो। जिन लोगों ने उन्हें देखा है अल्लाह उनका भी भला फरमाए, जिन लोगों ने नहीं देखा है अल्लाह उनका भी भला फरमाए। हम मोहब्बत वाले हैं, हम अकीदत वाले हैं, हम पीर वाले हैं, इसलिए आए पीर से मोहब्बत करने वालों, आए पीराने पीर से मोहब्बत करने वालों, अगर हज़रत शब्बीर मिल्लत के अंदर कोई कमाल देख रहे हो तो ये कमाल सिर्फ इनका नहीं है। ये कमाल किसका है? ये कमाल सरकार रहमत आलम का कमाल है। ये कमाल किसका है? मदीने के ताजदार का कमाल है। ये कमाल किसका है? दोनों आलम के मालिकों मुख्तार का कमाल है। उन्हीं के नस्ल पाक में हजरत सरकार मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जिन्हें कुतुब लखनऊ कहा जाता है। उनसे मुनाज़रा एक तहरिया से हो जाता है, एक चर्च के पादरी से हो जाता है, एक अंग्रेज मुफक्किर से हो जाता है, एक अंग्रेज मुल्ला से हो जाता है। उसने आकर के मखदूम मीना से सवाल किया था, कहा मौलाना ये अकीदा मेरे समझ में नहीं आता है कि हर मरने वाले की कब्र में तुम्हारे पैगंबर का जलवा दिखाया जाता है या वो तशरीफ लाते हैं। हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आखिर तेरे समझ में क्यों नहीं आता? क्या समझ में इसलिए नहीं आता है कि तुम्हारे पैगंबर के उम्मतियों की तादाद न जाने कितनी है, करोड़ों की तादाद में है, और न जाने एक ही वक्त में कितने उम्मतियों का इंतकाल होता होगा, एक ही वक्त में उनका जनाजा पढ़ाया जाता होगा, एक ही वक्त में उनको दफन किया जाता होगा। तो हमें जरा बताओ, एक ही वक्त में तुम्हारे पैगंबर मदीने से हर उम्मती के कब्र में कैसे जलवा अफरोज हो जाते हैं, कैसे वो नजर आ जाते हैं। वो जमाना मादियत का नहीं था, वो जमाना रूहानियत का था, वो जमाना इलेक्ट्रॉनिक दौर का नहीं था। और आज का दौर होता तो अंग्रेज मुफक्किर को दिखा दिया जाता, टेलीविजन दिखा करके बता दिया जाता कि क्रिकेट इंग्लैंड में खेली जा रही है और करोड़ों स्क्रीन पर उसका मंजर दिखाई पड़ रहा है। और अंग्रेज मुफक्किर जब मशीन का ये आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या होगा? वो जमाना मादियत का जमाना नहीं था, रूहानियत का जमाना था। रूहानियत का जमाना मादियत के जमाने से पाला तर होता है। हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक इमली के पेड़ के नीचे आराम फरमा है। अंग्रेज मुफक्किर को मुखातब करते हैं और फरमाते हैं, ऐ तहरिया सुन ले, ना तो मैं पैगंबर हूँ, ना तो मैं रसूल हूँ, ना तो मैं नबी हूँ, मैं अपने आका के गुलामों का गुलाम हूँ। आप पहले मुझे देख ले, फिर मेरे आका को देखना। कहा क्या दिखाना चाहते हो? कहा जरा इमली के पत्तों पर अपनी नजर को डाल। जब अंग्रेज मुफक्किर इमली के पत्तों पर नजर डालता है तो क्या देखता है? हर पत्ते पे शाह मीना का जलवा दिखाई पड़ रहा है, हर पत्ते पर शाह मीना की तस्वीर नजर आ रही है। अब वही अंग्रेज मुफक्किर लखनऊ में ऐलान कर रहा है, अरे लखनऊ वालों कलमा पढ़ लो। अरे लखनऊ के जब मीना का आलम है तो ताजदार मदीना का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तैयबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? ऐ नबी से चाहने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, मैं हजरत शब्बीर मिल्लत के मुरीदों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके मुरीदों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने
अपने मुर्शिद के नाम पर एक दिन का किला कायम किया है। आज छोटी शक्ल में नजर आ रहा है, मगर इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में एक जामिया की शक्ल में नजर आएगा, दीन का इदारा होगा और यहीं पर उलमा की जमात पैदा होगी, शब्बीर मिल्लत का फैजान जारी होगा। उनके खानवादे को अल्लाह अपने हबीब के सदके में सलामत रखे, उनके शहजादों को सलामत रखे, उनके मानने वालों को सलामत रखे, उनसे मोहब्बत करने वालों को सलामत रखे। मेरी दुआ है तुम्हें जिंदगानी रास आ जाए, कदम के उठते ही मंजिल तुम्हारे पास आ जाए। शब्बीर मिल्लत के निगाह फैज का ये आलम है, जो मोहब्बत से आया है उसका भी भला हो, जो नहीं आया है उसका भी भला हो। ये अल्लाह वाले हैं जिस जमीन पर बैठ जाते हैं उस जमीन को रश की जन्नत बना देते हैं, जहां पर उनके कदम पड़ जाते हैं वो जमीन वाजिब ताज़ीम बना दी जाती है, इसलिए कि अल्लाह